start. Decorator. So the idea behind decorator design pattern is assigning some extra capabilities to the existing object. Okay. Object में कुछ extra capabilities add करना is the funda behind the decorator design pattern. It is also, this decorator can be also known as the wrapper. So something which wraps the existing object, okay, and gives you some extra functionality. जैसे कि example देंगे, right? You give, let's suppose, some gift, right? So gift को क्या करते हो? So probably you buy some pen or something to gift somebody, ठीक है? And what you do? You actually wrap them in a probably wrapping paper, right? या gift paper पे wrap करते हो. So that actually gives a look and feel, right? वो extra capability add करता है उस particular product में. So जो gift वाला जो wrapping है, that is a decorator design pattern, which actually is wrapping, ठीक है? तुम्हारे ऑब्जेक्ट को रैप करता है, वो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी ऐड करता है तुम्हारे ऑब्जेक्ट में. एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एंड दिस यू विल फाइंड इन द रिफैक्टरिंग गुरु लिंक, ठीक है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, राइट? ठीक है, नॉर्मली है. सो गर्मी में प्रोबेबली यू वेयर द नॉर्मल टी शर्ट, ओके, बट इन विंटर व्हाट यू डू, you wear some winter clothes, right? Either sweater or jacket. So that jacket or that sweater is not actually part of you, right? Sweater या jacket तुम्हारा part नहीं है. It is just used to give you that extra flexibility of handling the weather, right? उसके बाद let's suppose it rains, right? तो तुम क्या करते हो? रेनकोट पहन लेते हो. So raincoat is not part of you. वो क्या करता है? ऐड करता है एक फंक्शनलिटी तुम्हारे में ताकि तुम रेन से प्रिवेंट हो पाओ, राइट? तुम्हारा बॉडी रेन से प्रिवेंट हो पाए. सो द डेकोरेटर सेज कि इट विल ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी इन द दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करेगा एंड दैट वोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है? तुम किसी भी टाइम पे, अब जैसे स्वेटर है, राइट? इफ यू डोंट फील लाइक, यू विल जस्ट तुम स्वेटर रिमूव कर सकते हो. इफ यू डोंट फील लाइक, यू विल रिमूव दैट जैकेट, राइट? So these all decoratives can be add or removed at runtime, whatever you think like. ठीक है, जो भी तुम्हारा यूज केस है, जैसे भी तुमको लगे, जब भी चाहिए तुम you can add and whenever you don't want you can remove. ठीक है, ये रियल वर्ल्ड इंट्यूशन क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? फिर मैं एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूंगा, देन इट विल बी मोर क्लियर. बट अभी तक मैं क्लियर था कि डेकोरेटर है क्या. एंड एक बार डेफिनेशन से भी देखते हैं डेकोरेटर का क्या है. ठीक है, लेट्स यू अटैच न्यू बिहेवियर्स टू ऑब्जेक्ट by placing this object inside a special wrapper. देखो, so ये क्या बोल रहा है? It will attach new behavior to the object, okay, by placing them under some wrapper. Wrapper is nothing but that decorator. तो डेकोरेटर को कभी कभी रैपर भी बोला जाता है. So that class is either a decorator or a wrapper because it wraps that. जावा रैपर्स का कोई रिलेशन है क्या इस पैटर्न से? Yes, it is exactly same. Most of the wrapper class are almost same. ठीक है, जावा में बहुत जगह पे यूज होता है रैपर डेकोरेटर पैटर्न. ठीक है, जितने भी तुम्हारे ये मेथड्स थे, राइट? इनपुट स्ट्रीम, राइट? अब जैसे तुम्हारे पास, जब मैं एग्जांपल लूंगा तो प्रोबेबली व्हेन विल डिस्कस दिस डेकोरेटर ना, देन द एग्जांपल्स विल बी मोर क्लियर. रैपर क्लास इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस. ओके, ठीक है, सो ये वाला डेफिनेशन भी क्लियर है. ठीक है, अब एक रियल वर्ल्ड यूज केस लेते हैं. ठीक है, let's suppose you need to create a pizza. Okay, need to create a pizza. So how, अब normally pizza सबने order किया होगा, right? So everyone knows, okay, कि what all kind of pizzas are there, what all kind of toppings are there, and how we gonna support. So एक बार बात करते हैं कि how will design, अगर मुझे एक pizza system बनाना पड़ेगा, ठीक है? So how we should design that pizza class? So probably there will be a pizza, right? Either it can be a abstract class or probably interface, and then it will be, let's suppose, implemented by, ये हो गया तुम्हारा thin crust and ये हो गया तुम्हारा thick crust, right? And probably you can have some size attribute as well. यहाँ पे size के attribute ले लेते हैं पिज्जा में, ठीक है? And you have the
thin crust and the thick crust, right? Now, what about the toppings, right? So topping के लिए क्या लगता है, अगर मुझे एक पिज्जा सिस्टम डिजाइन करना है, so मुझे कैसे उस सिस्टम को डिजाइन करना है, probably how will add the toppings? Anyone? उसके लिए एक नया क्लास बनाएंगे, या probably in this thin crust and thick crust will add that property, या उसके methods, या will add it here, कैसे करेंगे? And we'll see कि what is the advantage and disadvantage of that. पूरा it should be user defined, so I think we can have a list of options जहां से user can select which toppings he can choose. ठीक है, so he can choose, but तुम्हारे में वो property कहाँ पे होगी? You need to have that property somewhere, right? Whenever the user will select that, you need to add the properties or specify the value of that property. So where you will keep that property? So both thick and thin pizzas have toppings, so I think Right. related to both. So probably some class. अब जैसे देखो उसमें क्या है problem, ठीक है? अगर तुम्हारे पास multiple variation है, right? So probably you have this probably Alpino, okay, and you have some cheese, okay, and you have some, let's suppose, tomato, right? Now Alpino also has thin crust, cheese will also have thin crust, right? And tomato also will have thin crust. फिर कुछ कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? एल्पिनो प्लस चीज का बनेगा, एल्पिनो प्लस टोमेटो का बनेगा, राइट? सो विथ ईच टॉपिंग, ओके, यू आर गोइंग टू हैव मल्टीपल वेरिएशंस, राइट? अगर तुम्हारे पास साथ ही लेट्स सपोज अलग अलग टॉपिंग्स है, तो फॉर ईच ऑफ द कॉम्बिनेशन इफ यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई अ पिज्जा, इट इज गोइंग टू बी टेक होल लॉट्स, राइट? तुम्हारे पास पहला बनेगा ओनली एल्पिनो, फिर बनेगा एल्पिनो प्लस प्रोबेबली चीज, फिर एल्पिनो प्लस टोमेटो प्लस तो मतलब सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए यू नीड टू क्रिएट सम कॉन्क्रीट क्लास, अगर तुमको वो उस तरीके से हैंडल करना है तो। ये क्लियर है कि क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो एट्रीब्यूट है, राइट? तुमको हर एक टाइप के पिज्जा में उनको सपोर्ट करवाना है। सो आइदर फॉर ईच एंड एवरी पिज्जा इंस्टेंस दैट यू कैन क्रिएट, you need to have some kind of a mechanism, right, जिससे कि तुम उसको ऐड कर पाओ। so either each of your concrete class will have those attribute defined. क्लियर है यहां तक कि प्रॉब्लम क्यों होगा इसमें? ठीक है, एक बार अपनी डेफिनेशन में फिट करने का ट्राई करते हैं। अभी क्या है कि you had the pizza, ठीक है, and then you have the hierarchy thin crust and thick crust, okay, based upon each of the toppings, right? If you need to support each and every topping, the topping can come in any numbers. Probably one pizza can have all the toppings, or one probably can have two of the toppings only. So either one of the attribute is like in this thin crust and the thick crust, you will add all the possible topping. Let's suppose probably Alpino and probably cheese and all those things, and you can say true or false. Based upon that you can handle, right? एक ये वे होगा जिसमें कि तुम सारे प्रॉपर्टीज को ऐड कर दोगे इन द थिन क्रस्ट एंड द थिक क्रस्ट। बट सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बात नहीं है, राइट? एल्पिनो अगर ऐड करना है तो उसका कुछ और मैकेनिज्म भी होगा ऐड करने का, सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है ना। एल्पिनो प्रोबेबली एल्पिनो को कितने क्वांटिटी में डालना है या सब कुछ और भी बिहेवियर्स हो सकता है, राइट? सो इट इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी, उसमें और भी बिहेवियर्स हो सकते हैं। सो अगर तुम दोनों क्लास में रिपीट करोगे, ठीक है, या फिर यू विल ऐड इट इन दिस पिज्जा क्लास, राइट, इट विल वायलेट द सिंगल रिस्पांसिबिलिटी प्रिंसिपल, राइट? यही क्लास सारे पिज्जास के बारे में हैंडल कर रहा है एंड सारे टॉपिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन रख रहा है। सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी थोड़ा मेसी हो जाएगा, राइट? किसी भी टॉपिक में चेंज करना है सो तुमको इस पिज्जा क्लास को चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो इट विल वायलेट दैट प्रिंसिपल। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, अगर मैं एक बार देखूं तो पिज्जा कैसे फॉर्म होता है, पिज्जा का लाइफ साइकिल याद करते हैं, पिज्जा फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले यू टेक दिस, तुम्हारे पास को क्या बोलते हैं? बेस। बेस, या सो यू टेक दैट बेस। हाँ, डो बनता है, ठीक है, डो बोलते हैं ना उसको, ठीक है, डो बनता है। यू पुट दैट इन द बेस, ओके, यू ऐड द नेसेसिटी, राइट, जैसे कि शायद चीज वगैरह जो भी उसका बेसिक चीज है जो उसमें डालते हैं। इट एड द सॉस जो कि सब में है, राइट? सॉस इज इन एवरी पिज्जा। उसके बाद यू ऐड वन बाय वन, राइट? तुम एक पिज्जा लेते हो, ठीक है, तुम्हारे पास जो बेसिक स्केलेटन तैयार हो गया है, यू पास इट थ्रू सम वर्कर, या वही वर्कर उसमें क्या करेगा बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि एल्पिनो डालना है, ठीक है, सो इट विल ऐड द एल्पिनो।
फिर उसको चीज डालना है, इट विल add the cheese and then finally it will give it to the bake method, right? So अगर मैं add alpino, add cheese, add tomato, add capsicum, ये सारे मेथड अगर मैं अपने क्लास में रखूंगा तो my class will become very heavy. That will violate the single responsibility principle. ठीक है? And if you want to segregate in multiple classes, ठीक है, अगर मैं alpino ऐड करने वालों को सेपरेट क्लास में ऐड करूंगा, ये तो बिल्डर से भी बन सकता है. एग्जैक्टली, बिल्डर कैन कम हियर हैंडी विद दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये एक प्रॉपर्टीज होती, राइट, सिर्फ एक ऐड चीज प्रॉपर्टी होती जिसमें तुम कहते यस एंड नो, सो बिल्डर विल कम वेरी एफिशिएंटली हियर. बट द प्रॉब्लम इज कि बिल्डर के साथ थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम, बिल्डर प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करता है. एल्पिनो के साथ और भी कोड असाइन हो सकता है, राइट? हाउ टू ऐड द एल्पिनो, मतलब अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं तो probably you can say कि एल्पिनो इज अ प्रॉपर्टी, but actually alpino is a process, right? Alpino add karna is a process, it's just not a property. How to probably put the alpino, usko kaise cut karna hai, kaise dalna hai, this all is the responsibility of this alpino, right? So builder can come handy, but builder के साथ अपने problems है that can't be used for the other purposes. ठीक है, property अगर वो होता तो it could have done the job, but builder में एक चीज हमेशा याद रखना, builder is not the solution of हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी. अगर तुम्हारा बिल्डर में भी 8-10 प्रॉपर्टी जा रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी एन इंडिकेशन कि बिल्डर को भी तुमको कहीं ना कहीं कट करना पड़ेगा. मतलब बिल्डर बना ही इसलिए था कि ऑप्शनल प्रॉपर्टी हैंडल करना है, बट स्टिल अगर तुम्हारे पास 8 या 10 डिपेंडेंसी जा रहे हैं तो यू नीड टू थिंक समवेयर कि बिल्डर इज आल्सो गोइंग रॉन्ग समवेयर. प्रोबेबली यू नीड टू रीडिसाइड ऑन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट क्लास. अगर किसी क्लास में 8 या 10 एट्रीब्यूट जा रहे हैं तो तुमको रीथिंक करना पड़ेगा whether you have chosen the right set of attribute or not and you have categorized, मतलब तुम्हारा क्लासिफिकेशन सही कि नहीं, तुमने सही से इनहेरिटेंस यूज किया है कि नहीं, तो that you need to rethink of. But again coming back to the point, एल्पिनो और चीज ये सब मेथड्स हैं, मतलब इसमें प्रॉपर्टीज ऐड होंगे, इसमें और भी लॉजिक हो सकता है, राइट? इसलिए बिल्डर इज नॉट द राइट आइडिया टू डू दैट. अगर ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी होते तो कर सकते थे, but as these are the behaviors, so builder will not come very handy in this particular case. So what other alternatives we are left out with? We can have a class like this, right? Alpino thin crust. Alpino thin crust. अगर ले सपोज तुम्हारे पास एल्पिनो वगैरह को भूल जाओ, अगर मेरे पास सिर्फ ये रहता, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3 ही थे, चीज, ओके, and then you have the thin crust and then you have the thick crust. ठीक है, so probably 2 of the classes are cheese thin crust, cheese thick crust, normal thin crust and normal thick crust. so यहाँ तक कोड हैंडल था, मतलब यहाँ तक अगर मैं 4 क्लासेस बना करके कर रहा था तो मेरा कोड हैंडल हो जाता. बट द प्रॉब्लम इज कि दीज ऑल आर रन टाइम बिहेवियर्स. इनहेरिटेंस के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, एक बार ये देखो, ये जितने भी चीज कर रहे थे ये इनहेरिट कर रहे थे. थिन चीज थिन क्रस्ट वाज इनहेरिटिंग फ्रॉम दिस थिन क्रस्ट, थिक क्रस्ट वाज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस थिक क्रस्ट, राइट? तो इनहेरिटेंस में क्या प्रॉब्लम होता है कि प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड एट द कंपाइल टाइम, रन टाइम पे प्रॉपर्टीज नहीं डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, जब भी तुम सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, जब भी तुम अपने क्लास डिजाइन कर रहे हो, तभी तुमको प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. बाद में यू कांट चेंज द प्रॉपर्टी. अगर चेंज करना है तो तुमको कोड चेंज करना पड़ेगा. बट पिज्जाज वगैरह इस टाइप के जो यूज केसेस हैं, इनके साथ क्या खास है, एट द रन टाइम आई कैन ट्राई कि मेरे पास ले सपोज पिज्जा मेन्यू में क्या था, ले सपोज फार्म हाउस ले रहा हूं मैं, राइट? फार्म हाउस में क्या था कि मेरे पास एल्पिनो था, ठीक है, एल्पिनो एंड टोमेटो था. I am allergic to tomato, right? But still I want that farmhouse pizza. So what I'll say, give me farmhouse without that tomato. अगर मैं tomato से allergic हूँ, I'll say कि give me the farmhouse pizza without the tomato. So at run time I am saying, hey, I don't want this. You need to somehow figure out कि you don't need to populate this in my class, right? So these are the places where you are assigning the properties at the run time. And there the decorator comes very handy, क्योंकि decorator क्या बोलता है, decorator says कि pass me a skeleton, ठीक है, pass me a skeleton, I'll add the properties, ठीक है, या फिर मैं उसमें extra features ऐड कर दूंगा. ठीक है, उसके ऊपर तुमको कुछ और करना है
उसके ऊपर तुम कुछ और फीचर्स ऐड कर सकते हो। जैसे इसी केस में मैं देखूं, फर्स्ट यू हैव दिस बेस ऑफ द पिज्जा, देन यू हैव एडेड टोमेटो। अब तुमको चीज ऐड करना है, तो यू वोंट से कि हे रिमूव टोमेटो फर्स्ट एंड देन आई ऐड चीज। तुम बोलोगे ठीक है टोमेटो एडेड है, उसके ऊपर आई विल ऐड चीज, उसके ऊपर अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो आई विल ऐड द एल्पिनोस। ठीक है, सो द डेकोरेटर पैटर्न सेज pass me an object, okay, I'll add the features whenever you require in any of the orders। ठीक है, जहां तक थोड़ा क्लियर हुआ है, एक बार एग्जांपल में इसका दिखाता हूं और क्लियर होगा। दिस इज द लिंक। ठीक है, बहुत अच्छे से ये लिंक एक्सप्लेन किया है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल डे व्हेन द रिफैक्टरिंग को आई फाउंड दिस लिंक, इसमें काफी अच्छा एग्जांपल है अराउंड दिस पिज्जा, तो एक बार ये देख सकते हो। ठीक है, एंड एक और एग्जांपल लेते हैं डेकोरेटर का। ठीक है, यू गाइस कैन सी द स्क्रीन राइट? कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? You guys can see which screen? अच्छा जैम्बो, एक सेकंड। जस्ट सेकंड। एक और अच्छा एग्जांपल हम जस्ट सर्चिंग। ठीक है, ठीक है, यू कैन सी दिस स्क्रीन ट्यूटोरियल पॉइंट्स 1। ओके, तो देखो इसमें डेकोरेटर कहता क्या है। ठीक है, कि नॉर्मली यू हैड दिस क्लास हायरार्की। ठीक है, जिसमें कि यू हैड अ शेप क्लास, ठीक है, एंड यू हैव द सर्कल एंड यू हैव द रेक्टेंगल। नाउ अब तुमको, ओके, ठीक है, नाउ यू गाइस कैन सी। ओके, अब देखो, now you have the normal class hierarchy, you have the shape class and you have the circle and rectangle implementing this shape class। ठीक है, नॉर्मल जो तुम्हारी नॉर्मल हायरार्की थी यहां तक इज टोटली फाइन। नाउ व्हाट यू हैव, यू नीड टू डेकोरेट दिस शेप विथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। अब डेकोरेशन क्या हो सकता है, शेप में क्या क्या डेकोरेट कर सकते हैं? प्रोबेबली जो वी कैन डू सम फिलिंग, राइट, कलर फिल कर सकते हैं। देयर कैन बी सम अदर एट्रीब्यूट, वो क्या हो सकता है प्रोबेबली जो सॉलिड लाइन से मैंने सर्कल ड्रॉ किया था उसके जगह पे आई कैन ड्रॉ द विद अ डैश लाइन। ठीक है, for that what we'll have, we have a class called shape decorator। ठीक है, which is nothing but your wrapper class, जो रैप करेगा। तो ये किसको रैप करेगा? शेप डेकोरेटर, डेकोरेटर हमने बात की है, डेकोरेटर इज नथिंग बट अ रैपर। तो किस चीज को रैप करेगा? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को, राइट। सो दिस शेप डेकोरेटर विल रैप दिस शेप ऑब्जेक्ट।
zip जो टाइप का ऑब्जेक्ट है उसको ये रैप करेगा, एंड देन इट नीड टू गिव एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद यू विल हैव दिस बेस, इसको बेस डेकोरेटर भी कहते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव द कॉन्क्रीट डेकोरेटर्स, जैसे कि प्रोबेबली दिस इज रेड शेप डेकोरेटर, मतलब ये क्या करेगा, रेड प्रोबेबली कलर से डेकोरेट कर सकता है। द बेटर एग्जांपल विल बी कि कलर डेकोरेटर, ओके, कलर शेप डेकोरेटर या फिल डेकोरेटर। सो फिल डेकोरेटर क्या कर सकता है, उसमें कलर फिल कर सकता है। देयर कैन बी अनदर डेकोरेटर विच कैन डू लाइन डायरेक्टर, तो वो क्या कर सकता है, लाइन टाइप चेंज कर सकता है। जैसे तुमने सॉलिड में ड्रॉ किया है, अब उसको तुम डैश लाइन में ड्रॉ कर सकते हो। सो जस्ट अ सेकेंड। एंड यू हैव मल्टीपल टाइप ऑफ डेकोरेटर, जरूरत नहीं है कि सिर्फ एक डेकोरेटर होगा, पूरी हायरार्की हो सकती है डेकोरेटर की। जैसे हमने पिज्जा के केस में देखा, राइट, वी हैव द मल्टीपल टॉपिंग्स, सो ईच ऑफ द टॉपिंग्स कैन बी वन ऑफ द डेकोरेटर्स। सो लेट्स कम बैक हियर ऑन द Jamboard, ठीक है। ठीक है, यू कैन सी दिस Jamboard लिंक, राइट। अब यहाँ पे है, ये नॉर्मल हमारा पिज्जा इंटरफेस है, ठीक है, विच इज हैविंग दिस बेक, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू हैव दिस पिज्जा डेकोरेटर, ठीक है, which is going to have the same bake method, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, and it is going to have a pizza object। क्यों? डेकोरेटर क्या करता है, डेकोरेटर हमेशा जो ऑर्डरिंग है मेथड का उसको कॉल करता है, ठीक है। जैसे कि बेक है, राइट, बेक इज द फंक्शनलिटी ऑफ दिस पिज्जा। सो डेकोरेटर ये नहीं बोलेगा कि हे आई एम गोइंग टू अल्टर दिस बेक प्रॉपर्टी, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है, कि आई विल ऐड सम फंक्शनलिटी अबव बेक या बिलो बेक, ओके, एंड देन आई विल कॉल बेक। मतलब the decorator adds the property before or after calling the method। एक बहुत अच्छा एग्जांपल था that I missed actually। वो लिंक दिख नहीं रहा है, probably I'll find that link again, that has a very beautiful explanation of this and example बहुत proper है। जैसे बाकी सारे जितने भी एग्जांपल्स है लाइन शेप एंड अदर वाले, उसमें the gist is not coming out very clear, बट उस वाले एग्जांपल में बहुत क्लियरली वो एक्सप्लेन किया हुआ था। बट इन जनरल क्योंकि ऑलरेडी टाइम होने वाला है, so probably will not be able to go through the examples, so we'll take in the next session, और मैं उस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा how the course snippet will look like। but in general डेकोरेटर पैटर्न का एटलीस्ट जिस क्लियर है कि why we use the decorator pattern, होता क्या है एक्चुअली। एक जैसे एग्जांपल है, ठीक है, यू हैव दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। तुम्हारे पास लेट्स सपोज पहले क्या था कि ऑलरेडी ओनली यू हैड दिस ईमेल नोटिफिकेशन, राइट। सो नाउ योर यूजर डिमांडेड कि हे आई वांट अ Slack notification, someone say I want a SMS notification, someone say I want a probably Facebook notification, okay। So now you said ki, okay, now I am going to have the hierarchy, I am going to have the Slack, SMS, Facebook, these all will be inheriting from this notification, and whenever the client wants it can invoke Slack, SMS or Facebook। but what if the client says, hey, I want Slack and SMS both। so you'll say ki create a Slack notification, create a SMS notification, and then send, right? Then you have some combination of the Slack plus SMS, sometimes you will have all three, Slack, SMS and Facebook। so whenever you are going to give that flexibility, अब तुमको क्या करना है, देखो
क्लाइंट को चाहिए था नोटिफिकेशन सेंड करना, सो क्लाइंट वांट्स एसएमएस, क्लाइंट वांट्स स्लैक, राइट। सो इन दो को रैप करके तुमको एक क्लास देना पड़ेगा या एक मेथड एक्सपोज करना पड़ेगा जिससे कि क्लाइंट इन्वोक कर सके। यस, हाँ, डेकोरेटर एग्जैक्टली यही काम करता है। डेकोरेटर क्या बोलता है, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तुमने बोला नोटिफिकेशन का मुझे, या फिर नोटिफिकेशन सेंड करना है, राइट। तो नोटिफिकेशन में क्या सेंड करना है, मैसेज, ठीक है। सो तुमने क्या किया, एक मैसेज क्रिएट किया, उसके बाद यू कैन कॉल और पास इट टू द स्लैक डेकोरेटर, स्लैक डेकोरेटर। तो ये क्या करेगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्लैक पे मैसेज सेंड करेगा। बट अगेन ये मैसेज एज इट इज रहेगा, स्लैक पे मैसेज भेजा, उसके बाद तुम इसको रैप कर सकते हो मल्टीपल अदर के साथ। तुमने बोला कि अब मुझे चाहिए एसएमएस डेकोरेटर, क्योंकि मुझे उसको एसएमएस भी भेजना है। दो द सेम क्लास कैन बी पास ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। सेम मैसेज विल बी पुश टू स्लैक, पुश टू एसएमएस, एंड इसका जो डिजाइन है इट एक्चुअली फैसिलिटेट दैट कि वन बाय वन हायरार्की में तुम उसको कॉल कर सकते हो एंड इट विल रिमेन द सेम, और वो उसको एक के बाद एक कॉल कर सकता है। So whenever you want to add extra functionality, just add the decorator. Whenever you don't want that extra property, just remove that property from there. जैसे पिज्जा वाले केस में तुम्हारे पास एल्पिनो डेकोरेटर है, तुम्हारे पास चीज डेकोरेटर है, तुम्हारे पास टमाटो डेकोरेटर है। अगर तुमको टमाटो नहीं चाहिए तो अपने नॉर्मल फार्म हाउस वाला जो तुम्हारा एग्जांपल था, ठीक है, उसमें तुम प्रोबेबली इस टोमेटो डेकोरेटर को कॉल नहीं करोगे, या यू वोंट से कि दिस टोमेटो डेकोरेटर को कॉल करना, यू विल ओनली पास थ्रू दैट cheese decorator and the alpino decorator, ठीक है। so the decorator facilitate wrapping of existing object and another decorator। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल डेकोरेटर है तो ये जो डेकोरेटर है ये उस ऑब्जेक्ट को फिर से रिसीव कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीपल डेकोरेटर को वन बाय वन रैप कर सकते हो एक दूसरे के अंदर। एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर है। मैं एग्जांपल में जब कोर्स स्निपेट कल एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आई विल फाइंड दैट लिंक, उसमें बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लास डायग्राम एंड द कोर्स स्निपेट आई विल एक्सप्लेन टुमारो, ठीक है। एटलीस्ट द बेसिक आइडिया ऑफ डेकोरेट इज क्लियर। हाँ, या गो अहेड। Hi Ravi, one doubt I have is that like what if we have some conflicting properties? So what I mean is, Mhm. let's say we have notification, then we add a message. Mhm. Now let's say when we decorate it with the Slack decorator, Mhm. it updates some property, let's say the send property in a way so that Slack decorator updates the send property in some way, Okay. let's say in some way so that it will be sent via Slack only. Mhm. Okay, now let's say after that if we call the SMS decorator, हाँ, what if it tries to update the send property in a way that can, right? I mean like it will okay, override the got it. functionality of, हाँ, इसका मैं दो yeah. एग्जांपल देता हूँ। देखो, डेकोरेटर का कंसेप्ट या डेकोरेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यही कहता है यू डोंट नीड टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में डेकोरेटर इज एबल टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट द डेकोरेटर हैज। एक एग्जांपल मैं दूं, ठीक है, अभी मुझे एग्जांपल के ध्यान आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यूज हैव दिस ईओपी कंसेप्ट, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किसी ने यूज किया है? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या तो Yes, उसमें वो याद होगा, राइट, कि use it for दिस, हाँ exception handling. हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए करते हैं एट द रेट बिफोर क्लास या बिफोर थ्रो एक्सेप्शन, राइट। सारी चीजें ऐड करते थे, राइट। हाँ हाँ तो वो जितने भी हाँ, वो क्या करते हैं, right. इस मेथड को उसने डेकोरेट क्या किया। अब जो इसका ईओपी का जो मेथड है वो क्या करता है, पहले अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगर ये बिफोर है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट इट विल एग्जीक्यूट इट्स ओन कोड, देन इट विल एग्जीक्यूट योर कोड। उसके बाद अगर तुमने आफ्टर वाला लगाया है देन इट विल एग्जीक्यूट द आफ्टर वाला कोड, राइट। in a way it is not impacting any of the Okay. things of your code, ठीक है। it is just trying to add some extra functionality। so decorator के contract में it does not alter the behavior of the method। जितने भी तुम्हारे hierarchy हैं they need to make sure just they will add the behavior, ठीक है। they won't alter the properties altogether। ऐसा नहीं होगा कि मैसेज का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको चेंज कर देंगे ऐसे फॉर्मेट में which can't be delivered by SMS। it can be कि अगर तुमको यहाँ पे चाहिए डेकोरेटर में और मैसेज किसी दूसरे फॉर्मेट में चाहिए, सो विद द डेकोरेटर यू यूज सम काइंड ऑफ अदर डिजाइन पैटर्न, जैसे कि कल हमने अडेप्टर पढ़ा, राइट। सो अडेप्टर में क्या था कि मैसेज अगर दो सिस्टम मेरे कंपेटेबल नहीं है
तो वो एक दूसरे के साथ चेंज करने के लिए अडेप्टर यूज कर सकते हैं। तो तुम डेकोरेटर को अडेप्टर से के साथ यूज करो, बट कभी भी डेकोरेटर तुम्हारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। मतलब स्लैग को तुम आगे रखो या स्लैग को पीछे रखो, शुड डजंट मैटर। ठीक, सिमिलर है, मतलब एओपी में भी यही करते हैं राइट, जैसे जो खासकर लॉग वगैरह करने के लिए करते थे, बिफोर लॉग आफ्टर लॉग राइट, मेथड में स्टार्ट टाइम एंड टाइम जो कैलकुलेट करते थे, इट कैन डू राइट। अगर तुम्हारा एओपी ने ही मेस कर दिया कोड को राइट, तो फिर वो एक्चुअली नहीं बिहेव कर रहा राइट, जो एओपी का एक्चुअल यूज केस था वो सर्व नहीं हो पा रहा है। सो डेकोरेटर का कोड शुड बी केयरफुली डिजाइन सो दैट इट डज नॉट मेसेस अप विद द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। एंड यही खासियत है डेकोरेटर का। डेकोरेटर का खासियत यही है कि किसी भी ऑर्डर में वो यूज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है जेडीके वगैरह में जो करते हैं, वी हैव दिस फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर राइट। फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर आई गेस जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या क्या इनपुट लेता है, ये डायरेक्टली फाइल भी इनपुट लेता है राइट, डायरेक्टली फाइल भी रीड करता है। तो अगर मैं इसको बोलूं शायद फाइल रीडर होता है राइट, फाइल रीडर टेक्स अ फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर राइट। फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर कैन इटसेल्फ टेक अ बफर्ड स्ट्रीम रीडर राइट। बफर्ड स्ट्रीम रीडर ले सकता है। तो ये कॉल हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं राइट, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ओके, प्रोबेबली बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, मतलब जो भी हायरार्की, मुझे अब सिग्नेचर याद नहीं है, बट प्रोबेबली इन ऑर्डर बफर रीडर या न्यू बफर रीडर, न्यू बफर रीडर, ठीक है। एंड देन प्रोबेबली फाइनली यू पास द स्ट्रीम टाइप, कहां से रीड करना है, फाइल से करना है या सिस्टम डॉट इन से करना है राइट। हाँ सिस्टम डॉट इन। तो अगर तुम देखो, अगर तुम ये बफर्ड नहीं पास करते, स्टिल ये वर्क करता राइट। सिर्फ फाइल इनपुट स्ट्रीम इज आल्सो हाँ सफिशिएंट विदाउट दिस बफर्ड। बफर्ड क्या करता है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करता है, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करता है कि जो मेरा इनपुट और आउटपुट है वो बफर्ड वे में है, लाइक एक सर्टेन बफर के साथ काम करेगा। सो अगर तुम ये बफर्ड नहीं पास करोगे स्टिल इट विल वर्क, ठीक है। बफर्ड पास कर रहे हो तो थोड़ा डिफरेंट वे में ये वर्क कर सकता है। सो द डेकोरेटर आर ओनली टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, इट डज नॉट, इट शुड नॉट मिस विद द एग्जिस्टिंग कोड, विदाउट विच सेम ऑब्जेक्ट ये हर टाइम रिटर्न करे, सो दैट ऑल द क्लासेस कैन वर्क इन एनी ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? गॉट इट रवि, इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, कल के एग्जांपल में आई मेक श्योर कि इट गेट्स कंप्लीटली क्लियर। ठीक है, डेकोरेटर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिजाइन पैटर्न, बहुत केयरफुली डिजाइन होता है उसमें। With that example, it will be very clear. Missed that link totally, but I'll definitely find that link again tomorrow. ठीक है, and I'll do that. I'll explain with that. It will be very clear tomorrow. Cool. ठीक है, if no further question, let's end it here.